नहीं, what is not the one? The heavy one. Heavy वाला कौन सा? The mics, the other one. सारे हैं भाई. अच्छा. सारे काम करते थे. Multi-purpose. Loud. So, super random conversations. ठीक है. ADHD infused. हाँ, completely ADHD infused. तेरी भी मेरी भी. मेरी थोड़ी narcissism भी as well. And visible confusion. साथ में I have been told very recently by a dear friend of mine that it looks like as if I'm scared all the time. Okay. I don't know why. ये तो मेरे demons हैं. अपने बता. So getting scared. अपने बता. वो psychoanalyze मत कर. So first of all, I think recent changes in my life, as I told you about my life, whatever happened. भाई एमस ने सबसे बात करी कि I think I'm romanticizing separation and pain Like every rather than being with the person. मेरे को अलग होना ज़्यादा प्यारा हो रहा है. कहानी ढूंढ रहा है क्या कोई? I'm gonna be very मतलब कहानी ढूंढ रहा है क्या? यार मुझे ऐसे लगा. सच बताऊँ. So after Tamasha, again you haven't watched it, I know that, but This is exactly the reason why I don't even want to watch the movie anymore. I don't know, it got to my head. हाँ. तो वो कहानी है और पता क्या होता है कि whenever you meet a person, वो ही तारा है. Ved and Tara were the characters. Yeah. तो मैं जिससे मिलता हूँ वो श्वेता बन जाती है. हाँ. तो वही मेरे लिए तारा है. And I'll be head over toes to get her. I'll do everything. The moment I get her, it's being like, it's done. It's done. The moment I realize, okay, fuck, she's not Tara. ये बहुत सारे लोगों के साथ हो गया पता है हमारी जनरेशन में. Where we guys are just like the chase is more important than actually being with the other person. Yeah, I think it's not about the chase being important. It's about realizing कि तारा नहीं है. हाँ. तारा वो है ही नहीं. तारा असली में आ जाती है फिर. मतलब her real identity comes out and not the character. So there's this. मेरी श्वेता थी भाई. Clarified. नहीं देखने वाली वो फिर भी. Well, कोई नहीं. आधा श्वेत आधा काला. That's just life, I tell you. Yeah. Hello. हाँ. So there was this scene in Tamasha where Ved also realizes that. अच्छा. That मैं कर क्या रहा हूँ? किसके पीछे भाग रहा हूँ? तू वो नहीं. Not तू वो नहीं कि वही कहानी फिर एक बार. मजनू ने लिए कपड़े फाड़. तमाशा बीच बसा. आगे क्या था कि अब 2 कौड़ी की हस्ती है उसके लिए खेलूं. फेंक बिखेरूं अपना सब कुछ मन का चांदी दिल के मोती something like that. And the last time he said like दूर खड़ी मलिका है थोड़ी. वाह. मिराज है. लगती रेत है. वो लगता पानी. होती रेत. वाह. तो क्या चाहिए? देखो भी आना. अच्छा बीच में आ जा. हाँ बस. Sit. बैठ जा. टिपिकल ब्राउन फैमिली का सबसे छोटा बेटा. फीलिंग लेफ्ट आउट. क्या हुआ भैया ब्रेड दे दो यार. इसको ब्रेड बटर दे दो. कुछ दे दो. भैया से ले ले. भैया इसको यार एक वो ब्रेड बटर बनवा के डलवा दो. क्या खाता है? सुबह 7:30 बटर खिलाया है. अच्छा चलो ठीक है. आएगा. अच्छा 2 कॉफी करवा दो भैया ब्लैक. Do you think Tamasha has ruined our generation? Because I haven't seen the movie, I don't have an opinion about it. Again, I don't want to take names, but people have solely built their Instagrams on that.
ज़्यादा ही हो गया ये. हाँ. What do you think about the character John Elia? Then again, so if you ask about romanticizing pain, there's no other guy who can explain better than John. दर्द उनसे ज़्यादा किसी ने मेरे हिसाब से एक्सप्लेन नहीं करा है, एक्सपीरियंस बहुत नहीं करा होगा. हाँ. But to put that maybe in a poetic way or something, and to lead a life in search of pain only. Okay. That's what my perception of John is. क्योंकि लोगों को एक लास्ट वो समझ नहीं आता कि सबसे बड़ी बात गज़ल का परसेप्शन हर बंदे के लिए अलग होगा. True. ठीक है. अब बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, अगर यूं ही जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे. दुनिया कुछ भी सोचेगी अरे क्या क्या छूटिया बोल क्या बोल. बट when you experience that in a different way, अब बेदिली के मेरे लिए बेदिली यूं ही दिन गुजर जाएंगे can be living a corporate life. True. For someone it can be living some without a companion. कुछ भी हो सकता है. But at last यूं ही जिंदा रहे तो हम मर जाएंगे. मरना कितना आसान है. Well, if you ask me about my life experiences, damn difficult. But coming up to that stage itself, Yeah. कि जहाँ पे तुम्हें लगे कि भाई नहीं है, हो गया. I think that is the breaking point or the ground zero जहाँ से उठना बहुत आसान होता है, but एक बार उठना बहुत मुश्किल है. Sorry. But उठ गए. Then you're there. Happened with me recently in Goa. Breaking points can be a little too tough to handle at times. The worst part is हम soul reason कभी सर्च ही नहीं कर पाते. क्या reason? Soul reason जो है उस चीज़ का कभी हमने Breaking का? Breaking का भी किसी चीज़ का भी. Right now even I don't know कि मैं क्यों परेशान हूँ. But इतना बड़ा परेशान. Humans do have a natural inclination towards pain, towards everything that's negative. Do you think that is the reason, या फिर inspirations from John? Inspirations from John, yes. So एक बात है. Because you become what you read, you become what you see. I remember, खत्म कर लेना एक बारी. For example, when I watch Dr. House MD, जब भी मैं देख रहा होता हूँ, my humor becomes sarcastic. When I watch Friends, my humor becomes dumb. When I watch Seinfeld, my humor becomes anti-Jews. Sorry, anti-Muslim. And whenever I'm watching, I take inspiration from whatever I'm watching, to be honest. यार इस चीज़ में okay. So again, I have a different perception in that case क्योंकि मैं लेख से ज़्यादा लेखक को पढ़ने में बिलीव कर रहा हूँ आजकल. लेख से ज़्यादा लेखक को. Got it. That's how it's supposed to be done, I believe. Yeah. So before you read John Elia's work, you should read who John was. Thank you, Bhaiya. Who was John? What his perception was. What was his perception? For me, it's pain actually. Romanticizing pain. And एक दर्द को इतना emphasize कर देना कि उससे जिंदगी लीड कर पाओ तुम. मतलब तुमने अपना वो सेंट्रल कैरेक्टर ही वही बना लिया. पेन. Same as I told you that day. I'm becoming shit. बटालवी एंड जॉन को I believe ना कंपेयर किया जाए तो बेटर है. नहीं. Batavi took life too seriously. That's true. He was never romanticizing pain or anything. He took life way too seriously. Which is happening to us also nowadays. हाँ, I mean, एक कुड़ी जितना मोहब्बत जिसको नहीं पता, एक कुड़ी जितना मोहब्बत was written by Shiv Kumar Batalvi in memory of a girl whom he saw in a fair in Ludhiana
Actually, I think it was somewhere at a shrine, some shrine. Okay. I don't remember which exact place बट it एक was. मेला था. मेला था, exactly. मेले में वो लड़की उन्हें दिखी. दोबारा नहीं दिखी. 2 दिन बाद उनके दम में ख्याल आना स्टार्ट हुआ. रुके उसी मेले में एक कमरे में रुके हुए. एक कुड़ी से तरह मोहब्बत गुम है. तो दैट एरा की सिर्फ एक व्यू पे. So एक सेकंड. So I want you to go and search for Ishtihar, ISHTEHAR. That was the original poem that was written by Shiv Kumar Batalvi, which ended up becoming the song Kudi. Yes, sir. नहीं पता लोगों को. हाँ, exactly. Inspiration पूरी अलग है. So again, becoming Shiv is a way different thing because आज इंटरव्यू में उन्होंने कही थी यार मोहब्बत की कमी नहीं रही. Yeah, that's true. बट हुआ ही नहीं. हाँ, और वही होता जा रहा है हम सबके साथ. हाँ. तो there was a scenario that I told you earlier also. दिल्ली वाला सीन बिल्कुल दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ में शराब नहीं मिली, चलो हिमाचल. हाँ, yeah. एंड ही सॉ दैट वुमन क्लाइंबिंग अप द हिल एंड उसके भी चढ़ भी जाए करके यार टिल ही रीच द ठेका. आई थिंक इट वाज अ 1 or 2 hour ड्राइव. पूरी कविता लिख दी उस आदमी. हाँ. टर्न आउट टू बी वो समथिंग. इंसिडेंट एक्सप्लेन कर दो. That would be better, I believe, for everyone. So, as far as I know about that incident, because शिव के बारे में clear knowledge हाँ, किसी को भी नहीं आज किसी को की डेट में. So उन्हीं के एक दोस्त ने बताया था. So after he received the award in Delhi, there was this guy who was waiting for a celebration party for him, and some other poets were there. शिव साहब अपने मदिरा में मस्त. पहुंचते हैं लेट, खाना नहीं मिलता, दुत्कारा जाता है वहाँ से. दुत्कारने के बाद ही वेंट टू चंडीगढ़ टू हिज फ्रेंड्स प्लेस. चंडीगढ़ जाते हैं, रात को पहुँचते हैं, वहाँ पे जाते हैं कि वही शराब चाहिए, शराब नहीं मिली. So then his friend pulled out his car and they went to Himachal. कि वहाँ ठेका खुला होगा, वहाँ चलते हैं. हाँ. Some border somewhere. Yeah. तो वहीं पर सुबह 4 बजे एक लड़की दिखी उन्हें पहाड़ पे चढ़ती हुई. And he wrote this poem. I have to see what it was exactly. So चढ़ती जाए करके थी. हाँ. And just a random woman. Again, no relation, nothing. But he wrote something that romantic about someone. So that is what Shiv was for me. प्यार था, उनको प्यार था, but किससे again किसी को नहीं पता. किसी को नहीं पता. I think that is why he was in the company of Sahir and Amrita. Again a great example. You have to be पता नहीं यार. You have to be crazy on another level, I believe, to be able to drink yourself to death. I could never. I mean, I'm smoking myself to death. But ठीक है. खैर, हाँ. मैं सर्च करके भेजूँगा. हाँ, डन यार. मैं ऐड कर देंगे कहीं ना कहीं पे भी. बहरहाल, John. That's my whole perception of John. That's it. एक उर्दू कमेटी का हेड अपने आप को लॉक कर लेता है कुछ टाइम के लिए. Yeah. फिर वहाँ से अपने सलीम जाफरी साहब आते हैं. जॉन भाई आपको तो ये दिखाना पड़ेगा. Which he didn't want to. But at last. So John becoming a writer at that age, first of all. Yeah. Getting fame after 65, I guess. So, and he was never into fame or anything. बस अपने दर्द का रोना. हाँ. जिसको लोग हंसी में ले गए. Yeah. पागलपन में ले गए. हाँ. लोग हंसे हैं भाई मुशायरों में. तो वही है. Everybody is enjoying, I believe. Yeah. So that's John for me. Again, John for everyone will be different. John for you is different. So you tell me what John is for you. I cannot read John. Why? The public has ruined John for me. यार एक वो if you are asking about the Instagram shit. यार John as a writer is far bigger than Instagram. Yes. ठीक है. Like उसने जिस तरीके से वो बंदा मरे हुए उसको पता नहीं कितने साल हो गए हैं, बट वो इंस्टाग्राम पे आज जाके लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है इनटू राइटिंग पेन एंड शिट. बट द प्रॉब्लम इज लाइक यू सेड राइट, लेखक को पढ़ना ज़रूरी है. जॉन एज अ कैरेक्टर बिफोर अल्कोहल एंड आफ्टर अल्कोहल
with Salim Jafri and after Salim Jafri, Yes. very different. What people are not able to relate to is कि हाँ वो कैसा था और वो क्या था, उसने क्यों लिखा है. अब जैसे when same is the case with Faiz and Faraz even, like गुलों में रंग भरे is not about your like you selling flowers with your lover. Yeah. ठीक है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब का मांग, सेम थिंग. For प्रवीण शाकिर, पर वो रंजिशी से ही, दिल ही दुखाने के लिए. हाँ, बट अगेन राइट दैट्स अ वेरी वो कहानी का कोई वो बेस पता नहीं, लाइक ज़्यादा है नहीं शायद से, आई डोंट नो. लॉट ऑफ पीपल से दैट इट्स ट्रू, लॉट ऑफ पीपल से दैट इट्स नॉट. But as far as I have read about it, I think it's हाँ, मतलब in a very platonic and a very non-romantic manner. yes. It's just mutual admiration. तो कहानी ये थी कि फराज साहब वो अपनी हट के बहुत लीन थे. लाइक उन्होंने कोई बात अगर कह दी सो कह दी. एक बार की बात है, वो किसी मुशायरे में थे आई बिलीव, एंड ही हैड टू लीव फॉर द एयरपोर्ट द नेक्स्ट डे, बट ही वॉजंट एबल टू, लाइक वो निकलना नहीं चाह रहे थे. ही वॉज लाइक कि भाई मैं अपने कमरे में ही बंद हो के. ड्राइवर नीचे से फ़ोन करे जा रहा है कि सर आ जाओ. ड्राइवर एंडेड अप कॉलिंग अ फ्रेंड ऑफ फराज कि उनको नीचे भेज दीजिए एक बारी वरना उनकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी. एंड द जाज, फराज साहब नीचे आते हैं. जब नीचे आए तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक गिफ्ट शॉप पे रोकना गाड़ी को. जब गिफ्ट शॉप पे वो ड्राइवर ने मना कर दिया कि आप लेट हो जाएंगे. जब ये सीन हुआ तब उसके बाद आप ये मान लीजिए कि सॉरी नहीं प्लीज. हाँ, मैं वो ADHD ट्रिगर इन हो रहा है मेरा. मैं वही दिखा रहा हूँ जो इंस्टाग्राम में जॉन का कर रखा है, बट टेल मी. तो उन्होंने गिफ्ट लेके जब वो बाहर निकले तो रेडियो पे न्यूज़ आई कि मशहूर शायरा परवीन शाकिर का इंतकाल हो गया है एक कार एक्सीडेंट में. तो उस वक्त वो परवीन शाकिर के लिए ही एक तोहफ़ा लेके जा रहे थे. द स्टोरी इज़ कि उसके बाद उन्होंने लिखा था कि रंजिशी सही दिली दुखाने के लिए. तालिब बागपति साहब की का बहर है वो जिसमें लिखी गई है. तो या दैट वाज दैट. A lot of people say that कि हाँ it's not true. A lot of people say that it's true, but again nobody knows. यार बैक स्टोरी जो ये जानने की बात होती है, कहीं हर किसी का सियासत है नहीं पहली बात. ठीक है, पीपल रीड अबाउट थिंग्स, दे थिंक ऑफ देयर ओन परसेप्शन एंड गो अहेड विद दैट सेम थिंग विद द बिगेस्ट पार्ट ऑफ दैट नसीर तुराबी द सिंह. वो हम सफर था. हाँ, oh yeah. किसी को नहीं पता कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जब अलग हुए थे तब वो गजल लिखी गई थी. बट क्यों भी ना अच्छा गाया. क्यों भी ना अच्छा. Of course. क्यों भी कभी पहुंचे ये चीज़ तो प्लीज. हाँ, क्यों भी लेजेंड है भाई, वो लेजेंड है वो. सही है. शादी कर ले यार उनसे. Too many in line. हाँ, I'm sure. What are your inspirations to write poetry? Inspirations. So, चलो I'll do it in the Shiv way. जी, फरमाएं. तो जैसे उनका ख्याल था कि लोग कहते हैं पोइट्री फ्रस्ट्रेशन से पैदा होती है या फिर दुखांत हो. बट ओके, सो दुख मेरी लाइफ में, मैंने कहूँगा मेरे को बहुत अच्छी लाइफ मिली है. टच वुड. सो बट मी रोमांटिसाइजिंग द सैड पार्ट ऑफ इट. हाँ, मैं वहाँ पे रह रहा हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है सच में. okay. Again, that's why I'm saying I'm going into the other zone. कुछ लोग कहते हैं कि डिप्रेस है. भाई मैं डिप्रेस नहीं हूँ. आई एम हैप्पी विद माई लाइफ. आई एम हैप्पी विद व्हाट आई हैव एंड व्हाट आई सीक. ठीक है, तो फॉर मी इट्स दैट. लव इज वन ऑफ द थिंग बिकॉज ओके, लोग कहेंगे बहुत चूतिया ख्याल है, Yeah. बट
I feel unloved. And it's not like I've never got it. ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं मिला पर मुझे फील नहीं होगा. Got it. Okay, to be truly blunt, whether it's a relationship with parents, whether it's a relationship with siblings, or a relationship with a partner, whether it's anything, मुझे कभी feel नहीं होगा. So maybe that is a part of me which wants to write on everything. So that day एक गज़ल है लिखी थी कभी and still working on that. So again it's a ADHD infused गज़ल because इसका स्टार्ट मैंने 4 शेर से किए थे और लिखते लिखते इसमें बीच में ऐड करता जाता हूँ. अगेन गाइस बहर का थोड़ा सा है अभी समझ जाना ठीक है. बहर क्या है यार? When people like Manar say it, when people like a lot of people out there to be honest. Yeah, we are not just name targeting. हाँ मनहर का नाम सबसे ऊपर आ जाता है हमेशा. I don't know how. मुकुल शर्मा भी कह सकते हो बट even अच्छा मनहर छोड़ो, राकिब खान जब वो बहर में नहीं लिख रहा, कोई भी बहर में नहीं लिख रहा, तो क्या है बहर? बट आई मीन लाइक दे आर नॉट द बेंचमार्क्स टू बी ऑनेस्ट. बहर में लिखने की कोशिश करो, मैं तो यही बोलूँगा. मुझसे लिखा नहीं जाता, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट, बट आई डोंट थिंक सो अपनी क्रिएटिविटी को तुम बहर में बांधो और फिर उसके बाद बोल दो कि हाँ नहीं हो रहा. इस बात पे मुनव्वर राणा साहब की एक गज़ल की बात याद आती है जो उन्होंने कही थी. क्या? So he wrote a ghazal. Everything was ready. He put his thoughts onto the paper. सब काफिया सब कुछ बराबर था. Yeah. It took him 2.5 years कि उस गज़ल को बहर में लाने के लिए सारे वज़न सही करने के लिए. So मैं पीछे लिख रहा था कि लिख भी क्या रहा था. I was writing something कि भाई खिर्दमंदों से पूछोगे अगर तो वो गज़ल का बहर गिनने लग जाएंगे, इश्क के पड़ाव बता देंगे. हम जैसे पागल से पूछोगे अगर तुम तो माशूक की आंखों से ही नहीं उभर पाएंगे, क्योंकि माशूक की आंखों में तुम्हारा नाम लिखा होता है. ठीक है. और फिर ये हो जाता है कि भाई तुम अपना नाम किसी की आंखों में पढ़ोगे अगर तो तुम शर्म से मर जाओगे. ठीक है. वो एक्सपीरियंस हो गया तो गलत बात हो जाएगी ना. हाँ एंड प्रॉब्लम वो भाई वो भी चरस है क्योंकि मैंने देखा है माशूक की नज़रों में नहीं मगर हाँ किसी एक इंसान की मतलब शुक्र का चोट मैन बहुत प्यार मिलता है. जितना भी मिलता है बहुत मिलता है. एंड मैंने देखा है लोगों की आंखों में नाम लिखा हुआ, चाहे बी इट फॉर दैट पर्टिकुलर 10 minutes, एंड इट चेंजेस यू. उसकी तलब नहीं हटती, पता है. दैट हिट्स मी हार्ड. बहरहाल प्लीज हम जहाँ पर थे. हाँ तो एक गज़ल लिखी थी. I don't know मैंने आपको सुनाई है कि नहीं, अभी परसों मेरे साथ सुनाई थी. तो अगेन इट्स लाइक व्हाटएवर हैपेंस इन माय लाइफ उसका एक शेर में ऐड कर देता हूँ. ठीक है. ठीक है. तो मतलब कुछ ये होता कि कुछ एक बदलते हैं, कुछ एक बदलते हैं, 2-4 बदलते हैं, 2-4 बदलते हैं. तो आई थिंक काफ़ी लोग रिलेट करेंगे इस वाले से. तो कि कुछ एक बदलते हैं, 2-4 बदलते हैं, हालात बदलते ही क्यों यार बदलते हैं. वाह वाह. अब फूलों की फितरत है, फूलों की फितरत है खिलना और मुरझाना. कि फूलों की फितरत है खिलना और मुरझाना. मौसम के बदलने से कब खार बदलते. वाह वाह. अब अगेन ये लिखी थी तब, उसके बाद लाइफ में एक और सिनेरियो है, फिर हमने एक शेर ऐड किया. हाँ. कि फूलों की फितरत है खिलना और मुरझाना, मौसम के बदलने से कब खार बदलते हैं. हाँ. ताउम्र हम रहे किराएदार उस गली में. ताउम्र रहे हम किराएदार उस गली में, और वो कहता रहा तेरे जैसे हजार बदलते हैं. वाह वाह. I think we should change the location. Yeah. कॉफी पाउच से डालता है ना फड़ के, ज़्यादा कॉफी डालियो स्ट्रॉन्ग. ठीक है. एक में बिल्कुल चीनी नहीं और एक में थोड़ी सी चीनी, बहुत ज़रा सी. ठीक है. और गर्म पानी. हाँ. This one, yeah. What is that? Location change. You have installed a clapper. Yeah, clapper नहीं है ना. ये देख लो फोन में क्लैपर इंस्टॉल कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं. But yeah, location change.
हाँ जी, तो हम थे बीच गजल में। बीच गजल में आखिरी शेर पढ़ा था कि थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, माइक दूर हो गया अब। तो आखिरी शेर पढ़ा था कि ता उम्र रहे हम किराएदार उस गली में, वो कहता रहा तेरे जैसे हजार बदल गए। वाह। एक है शेर, अभी ये थोड़ा रॉ है। हाँ, रॉ है तो इसमें था कि एक किताब में रहे हम मरकजी किरदार, किताब में रहे हम मरकजी किरदार। तो किताब में रहे हम मरकजी किरदार, अब पन्ने दर पन्ने बस इश्तेहार बदल। वाह वाह। तो एक शेर अगर इस पे अगर जो हमने अब तक बात करी है, हाँ, अब उस वे में ले पाओ तो अच्छी बात है। दूसरा फोन आ गया मेरा, इट्स दैट वो जेब में। हाँ, कि पन्ने दर पन्ने बस इश्तेहार बदलते हैं, हर बार बड़ी मुश्किलों से याद करता हूँ। गौर फरमाने चले, एक सेकेंड। हाँ करना। कि हर बार बड़ी मुश्किलों से याद करता हूँ, हाँ, ये तेरे घर के रास्ते हर बार बदलते। वाह। कभी याद हुए हैं रास्ते उसके घर के? अब वो कौन है हमें भी नहीं पता। मैं तो यार अपने घर के रास्ते भूल जाता हूँ। मुझे लगता है हर 6 महीने में ना कुछ नया हो जाता है रास्ते में। अच्छा, वही बता रहे हो जो हमारी पुरानी कॉन्वर्सेशन है उस हिसाब से शेयर कर लो। हाँ, नहीं सही, लोग समझते हैं नहीं ओ से माय नहीं। गॉड उसके हाँ। घर के रास्ते हर बार। नहीं, गलती हमारी है फिर। हम भुलक्कड़ हैं। तो और मक्ता ये था, मक्ता कभी चेंज नहीं होगा। अच्छा, मक्ता पहले ही लिख लिया है, गजल अभी पूरी नहीं हुई, लेकिन बीच में ऐड होगा जो, बीच में ऐड हो रहा है जो हो रहा है। ठीक है। मक्ता हमेशा ये रहेगा कि मुद्दतों से कोई खरीदार नहीं आया, मुद्दतों से कोई खरीदार नहीं आया। और फरमाना कि मुद्दतों से कोई खरीदार नहीं आया, हाँ, चल नमन इस बार बाजार बदल। वाह। यू लुकिंग फॉर योर तखल्लुस ना। नमन भी अच्छा है वैसे। The most generic name on the globe you are planning to give it. मैं तुझसे बात कर रहा था, दूसरे नमन का कॉल आ गया था। सही में उसका उसको मतलब बात करनी थी, बट हाँ उसका फोन आ गया अभी सुबह। सही में यार। तो वही है, this is again a ADHD infused ghazal, but it is all about everything that happened in my life. एक एक गजल, एक एक शेर, गजल का शेर, पूरा एक एक दूसरे में कोई ना कोई वही से। Just generally asking, don't you feel so that it is unjust to the future incidents in your life where तूने उसका बहर पहले ही सेट कर दिया? कोई नहीं, और लिख देंगे कुछ और। ऐसा तो है नहीं कि हम मतलब बिल्कुल ही खत्म हो रहा है सब हाँ। कुछ और कहीं और बना देंगे। मतलब आप भी मुनावर साहब की तरह 2.5 साल लेंगे फिर बहर और वजन सेट करने हाँ। में गजल का। वो है। 2.5 साल तो नहीं, चलो ट्रेन कर रहे हैं, अभी देखते हैं। Time हमारे लगेगा। काफ़ी अजीज मित्र हैं, उन्होंने हमें सिखाया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अच्छा, तो हाँ, जरा करेंगे बात उस पर। करो भाई करो। बहर में लिखना एक बार समझ आ जाए ना, फिर उसके बाद तो वो तुम्हारा जो नज़रिया है ना एक पूरी गज़ल लिखने का, वही बदल जाता है। सही। वो ही बदल जाता है पूरा का पूरा। इतना तो मैंने देखा है। बट हाँ, ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल आई फील लाइक कि नहीं भाई। यार आई थिंक द फर्स्ट पॉइंट शुड बी पहले लिखना तो सीख लो। एग्जैक्टली। पहले अपने इमोशंस को ले तो हो पेपर पे, Exactly. फिर बहर सेट कर लेना। पहले फील तो करो उस इमोशन को। आई फील लाइक कि लोगों को ना लिखने की ज़्यादा जल्दी है, इमोशन फील करने की जल्दी नहीं है। मतलब दे डोंट वांट टू फील एनी इमोशन, दे जस्ट वांट टू रश थ्रू इमोशंस। आई थिंक दैट इज फ्रॉम वेयर दैट अदर थिंग कम्स अप एज वेल, वेयर you go behind a woman and once when you get to know who the person is, वो तारा वाली इमेज टूट जाती है और निकलो। We're being super vulnerable right now. Please don't judge us in the comments. कर भी नहीं, हम रो नहीं लोगे तो कर भी लोगे तो। एंड इसका ना फिर वो कोई मतलब पता नहीं यार, बहुत ही ना गलत टाइम पे ये पॉडकास्ट छेड़ दिया है उन्होंने। बट ठीक है, आई थिंक ये ज़रूरी भी था। सो अगेन आई थिंक मेरे को भी लगता है कभी बार मैं किसी पोइट की लाइफ को ज़्यादा सीरियसली लेता हूँ, एंड आई ट्राई टू इंडल्ज दैट इन माय लाइफ सो दैट आई कैन राइट बेटर, व्हिच आई डोंट
think it's a great approach, Yeah. but it works. It was, of course. I mean, you never know what works, what hits you, till the point you're not able to define your own style of writing, which I believe you're still wondering out. You're still figuring it out, right? तो वही अगर अब शिव की बात करूँ उसने हम डिस्कस भी कर रहे थे कॉल पे वो वाली असा था जो बन रहा है अगर मेरे 3 साल पहले मैंने 4 साल पहले पढ़ा होता आई वुड हैव बीन लाइक व्हाट हाँ, exactly. fuck, why? हाँ, why? बट नाउ आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ द पॉइंट कि भाई उस बंदे की क्या स्टेज रही होगी एट द एज ऑफ 30 और 29 he wrote about dying in the youngest phase of his life. हाँ, ऐसा तो हाँ, exactly, right. ऐसा तो जो बन रुते रुतने मरना. मुड़ जाना असी भरे भरा है हिजर तेरे दी कर परिक्रमा ऐसा तो जो बन रुते मरना. उसका शिव का माइंडसेट ही अलग था यार. If you talking about Shiv, his mindset was completely different from whatever his contemporaries were like. Exactly. Completely different. तो लोग कहते हैं कि जिसने कभी प्यार किया नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ उसको प्यार नहीं मिला, जिसने कभी प्यार किया नहीं, he wrote that much on love. हाँ. Imagine, right? अगर उसने प्यार कर लिया होता. हुआ तो होगा. But also, हुआ तो था. some people say that he was gay. Well, I have heard that too. हाँ. But वो लोगों की सिर्फ perception रही है because of the way he speaks Exactly. in that video. I think he was drunk. Yeah, obviously he was drunk. He was a big time drunk. he was just drunk all throughout every single time. I mean, शिव की एक वो है यार, जिथे मेरा यार बसता. Yes. It is such a beautiful poem. Poem भी नहीं है यार, वो it is a song. शिव ने मुंह पे बोला हुआ है कि भाई मैं गाने लिखता हूँ. आज शायर साहब ने भी बोल दिया था. शायर साहब, फराज साहब once said कि फराज साहब ने एक मूवी डायरेक्ट करी हुई है. Okay, I don't have any idea. हाँ. एक दो उन्होंने जो कुछ भी जितनी भी करी, and after that he was like, देखो रंजिश ही सही का बन गया था मतलब है कि उसका गाना बना, उसकी गजल बना दी गई, मतलब गा दिया गया उसको. मगर फराज साहब ने बोल दिया कि भाई मैं नहीं लिख सकता गाने जैसे फैज साहब लिख रहे हैं, जैसे साहिर लिखते हैं. आई कैन नॉट राइट सॉन्ग्स. तुम उसको बना दो अगर तो बात अलग है कि अच्छा इस एक वर्ड को चेंज कर देते हैं इनटू समथिंग एल्स तो वो गाने के मीटर में बैठ जाएगा. ही लाइक क्यों. बट नहीं, हमारे पास कुछ इतने आई डोंट वांट टू से लाइक दिस बट इतने टैलेंटेड सिंगर्स हैं. हाँ. ओ या वो किसी चीज़ को कुछ करेंगे. हाँ भाई मेरा. हाँ. So if you ask, देखिए they'll try, they'll sing John. हाँ, they'll sing John. I'm sure they'll end up singing John. कोई ना कोई कर देगा. पता है, I was not expecting ये अभी उसका जो आया हुआ है इश्क चीनी वाली. थैंक यू. कम चीनी वाली जो वो आई हुई है ना, वो गाना है ना अभी अली सेठी वाला. नहीं अभी एन लिखूं तो सोचे मुझे शीन लिखूं. I was not expecting the song. I never expected it in a million years. ना लिखूं तू आ जाए. हाँ. आ लिखूं तू आ जाए, बैठ लिखूं तू आ बैठे, मेरे शाने पर सर रखे तू, मैं नींद कहूँ तू सो जाए. I mean, I don't know. What do you think about it? So first of all, I think कुछ चीज़ों को जैसी हैं वैसे रहने दो. मैं उन चीज़ों में बहुत बिलीव करता हूँ. People call it like कि नहीं you should give. ठीक है, गजल गाना भी बहुत बड़ी बात है. मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी अच्छी बात है. जगदीश साहब ने बहुत अच्छा करा. नहीं, I think this is yours. No, this is yours. इस पर लड़ लेते हैं पहले. हाँ, ये important चीज़ है बहुत. तो भैया एक कुर्सी लगाता हूँ यहाँ पे भी. हाँ, तो कहाँ था मैं? हाँ, गजल गाना बहुत मानता हूँ. इट्स अ डिफिकल्ट टास्क. बट लोग जो समझते नहीं है गजल लिखी किसने है क्या है. यार तुम्हें बात बताओ, मेहदी हसन दिस थिंग अभी गाड़ी में सुनता हुआ आ रहा था यार. तू कौन ना हो. हाँ, रफ्ता रफ्ता वो रफ्ता रफ्ता वो मेरी. हाँ. Nobody knows about the right. Nobody knows.
मेहंदी हसन साहब ने बहुत अच्छा गाया, मना नहीं कर रहे, बट प्लीज़ थोड़ा सा इत्तू सा क्रेडिट दे दो हमें भी। मैं नहीं कह रहा हूँ मैं हूँ, बट हाँ जिसकी है उसकी दे दो। नहीं, क्रेडिट तो पूरा है, वो याद नहीं है। आई थिंक मोहसिन नकवी की है। यस, मोहसिन नकवी की है, राइट? हाँ। डैम, याद कैसे है मेरे को? कुछ ही लोगों को याद है। हाँ। बट सी, इफ यू गो एंड आस्क इन द पब्लिक नहीं पता। हु इज मेहंदी हसन, यस सबको पता है हाँ, मेहंदी हसन। मोहसिन नकवी नहीं मोहसिन पता। नकवी किसी को नहीं पता। कुरतुल बलोच का गाना सबको पता है। सॉरी आई एम टेकिंग द फुल नेम। वो हम सफर था, बट नसीब तुराबी सबको नहीं था। हाँ, दैट्स द प्रॉब्लम। ये आई थिंक रहेगा, पता है वो। सो यू नो, साहिर वर्कड अ लॉट फॉर द राइट्स ऑफ लिरिसिस्ट्स। यस, मतलब उन्होंने साहिर साहब ने ऐसा कर दिया था कि वो 2 पैसे फालतू भी लेते होते थे, और वो कहते होते थे कि भैया मेरा नाम तुम सबसे पहले डालोगे मूवी में। लाइक हाउ इज द केस विद कौन सी थी वो, प्यासा। लिरिक्स साहिर अलग से सबसे पहले स्लाइड में आता आई होता। थिंक इट प्यासा के गाना तो नहीं, किसका रास्ता देखे इट वाज रिटन बाय साहिर साहब, हाँ, बट आई डोंट रिमेंबर द मूवी। सी, मैं मूवी भूल जाता हूँ। वो गाना याद है, किसका है, राइटर कौन है। मैं मूवी भूल जाता हूँ। जोशीला वाज द मूवी। Okay. किसका रास्ता देखे। हाँ, यार आई डोंट नो, तो मेरे को उस गाने से थोड़ा ज़्यादा प्यार है। हाँ। उसका ऐसा लाइक साहिर साहब प्लीज बख्श दो मुझे। तो ही गॉट द होल, व्हाट डू यू कॉल इट, उन्होंने लिरिसिस्ट को काफ़ी वो करवाया है, लाइक acclaim दिलवाया है। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, आमिर अमीर साहब की जो गज़लें हैं बहुत प्यारी हैं। जितनी भी haven't read much on his work, but I will. read his work. It's beautiful. It's beautiful. एक उनकी एक और भी है कि वो जनवरी की धूप में मिली थी, नहीं दिसंबर की सर्द रातों में सफ़ेद साड़ी पहने वो मिली थी, ऐसे करके है कुछ। और उनके उसमें रहता है टाइम इज़ काउंटेड ऑलमोस्ट इन मंथ्स। एक और है उसमें लिखा था कि जुलाई की गर्मी में वो जुदा हुई थी, इसीलिए वो मुझे महीना अब नहीं पसंद। ऑन these lines. I think that I don't know whose it is, but रेख्ता 2018 की बात है। 18 से 17 में याद नहीं, मैंने सुकन ने परफॉर्म किया था जब 2018 गालिब की मज़ार पे। 2018 है। 18 है 17 से क्या। तो वन सिंगल लाइन, नथिंग, एक जुमला था। उन्होंने पढ़ा था कि वो कितने दिल तोड़ेगी ये कमबख्त फरवरी, किसने यूं ही तेरे दिन नहीं कटाए। हाँ हाँ हाँ, my goodness. एंड व्हाट इंस्टाग्राम डज इज, ये लिख के नीचे लिख देंगे जॉन। So this used to be the case with गालिब साहब अगर जिंदा होते, हाँ, मिर्जा गालिब अगर जिंदा होते आज, वो कहते थे भाई इतना मैंने लिखा नहीं है जितना मेरे पास है कंटेंट। He's like मेरा दीवान 3 गुना कर दिया तुम लोगों ने। मेरी एक राइटिंग है, नहीं अरे मेरी बड़ी ये वन ऑफ माई मोस्ट प्रोमिनेंट 2 लाइनर्स है यार ये। मैं झूठ बोलता रहूंगा तुम सच मान के हंस देना, चाय ठंडी हो जाएगी तुम फिर कभी लड़। भाई उसके नीचे मैंने एक जगह पे गालिब देखा है यार। उसके नीचे मैंने एक जगह पे गालिब देख लिया था। आई वाज लाइक बाद में लगा दियो, इसके ऊपर बाद में लगा दियो। तो है ये वो एक, आई थिंक यू वर द ओनली वन हु टोल्ड मी अबाउट दैट सिनेरियो। लड़की ने पंजाबी में कुछ लिखा, हाँ नीचे लिख दे बुल्ला। हाँ हाँ हाँ, लाइक डू यू नो हु बुल्ले शाह इज? नो, एग्जैक्टली। बुल्ले शाह वन ऑफ द प्रोमिनेंट पंजाबी थीम। उसने, मैं बताता हूँ क्या करा, क्या उसने एग्जैक्टली व्हाट शी डिड वाज कि द मेन कैरेक्टर ऑफ द होल गजल उसको बुल्ला बना दिया। अच्छा,
तो If you're new- बुल्ला की जाना मैं कौन बुल्ला नहीं जानता है, बट शी नोस. मतलब हाँ, मतलब it was on the same note, same path where बुल्ला की जाना मैं कौन comes Oh, from. okay. But like, यार Bulle Shah is already a character. कुछ नया तो लेकर आओ ना मार्केट में. फरीद. फरीदाबाद सेटल हो गया फरीद के नाम से तो यार. Yeah, from now onwards, guys, it's not Faridabad, it's Farhidabad. फरीदाबाद, यस. बात वो नहीं है, बात ये है कि एक बार देख तो लो. नहीं होगा. So this, okay, people call it dumbness, but मेरे को थोड़ा सा injustice लगता है towards a writer. Of course. यार, this girl, it was a very beautiful poem, I'm not gonna lie. वो जो उसने मुझे सुनाई थी, very beautiful poem. But had it, वो बस वो एक जो बुल्ला जो उसने ऐड करा ना, brought the whole thing down. खैर, ये तो पर्सनल मेरी एक वो है, ओपिनियन है. बट हाँ, बुल्ले शाह जी कुछ कह रहे थे आप. बुल्ले साहब पे मैं सिर्फ ये कह रहा था कि नाम ऐड कर देते लोग. गालिब पे भी वर टॉकिंग अबाउट. हाँ. So yeah, again, one of the most phenomenal ever. हाँ, बुल्ले शाह. बुल्ले शाह और गालिब. This is going to be very dicey now. Okay, you tell me. बुल्ले शाह. I believe बुल्ले शाह. Why? Just because you have exposure to Punjabi. No, Then. क्योंकि एक मीर भी था भाई. तुम लोग नहीं समझे कि रेखते के तुम ही नहीं रेखता के, उस्ताद. हाँ. उस्ताद गालिब कहते हो उस ज़माने में मीर भी था. तो एक बार ज़रा इसको एक्सप्लेन करके बता दे सबको. तो गैस होता क्या है कि मैं बताता हूँ. मिर्ज़ा गालिब आते हैं जिनको कहा जाता है फुज़ा उर्दू के कुछ भी कह लो तुम. मास्टर कह लो. वन ऑफ द मास्टर्स. वन ऑफ द मास्टर्स इन उर्दू को ही रेखता कहते हैं. हाँ. आधे लोगों को ये भी नहीं पता है. हाँ. देखो लाइक हम जैसे रेखता जा रहे हैं, मैं क्यों जा रहे हूँ, बस ऐसे ही परफॉर्म हो रहा है आगे का. बट उनको ये नहीं पता रेखता है क्या. तो रेखता इज जस्ट अनदर वर्ड फॉर द उर्दू लैंग्वेज. तो गालिब को जब टाइटल दिया गया था उर्दू के ऊपर कई सारे, देन ही टोल्ड पीपल अबाउट दिस थिंग, समथिंग फॉलोइंग. पत्ते. कोई तो नहीं. हाँ. कि रेखते के तुम ही नहीं उस्ताद गालिब कहते उस जमाने में एक मीर भी था. Again, praising another writer in life is again a very different task and a difficult task. तो अच्छा, again coming back to the topic of Ghalib and Bulla. Bulle Shah. I believe Bulle Shah, I feel closer to Bulle Shah because of the amount of work he has done in spirituality. True. But he has And related philosophy. spirituality to a lot of other Yeah, definitely. And Ghalib से I can relate कि हाँ उन्होंने अपने वक्त में like his whatever he was going through, his circumstances, उन्होंने उसको किस तरीके से लिखा है. Yeah, I think previously it was all about spirituality mostly. Definitely, everything. प्यार के बारे में इतना नहीं था. यार वो मीटर अलग था लिखने love का. for the God, love for God. एक उर्दू का लेवल अलग था. बिल्कुल. फिर 1900 स्टार्ट हुआ और हमारे यहाँ अल्लामा इकबाल साहब आए. उन्होंने सारे राइटर्स को से बिठाया जैसे हम बैठे हुए अभी. हाँ. कि इधर आओ ऐसे लिख. हाँ. So modern day ghazal, I think, if it was born, all credit goes to Allama. Up it. मेरे हिसाब से तो काफ़ी जाता हूँ. So डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ, डॉक्टर साहब माने डॉक्टर अल्लामा इकबाल. Yes. डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ ऐसा लिखा which was challenging everything. Yes, he revolutionized poetry, Modern day love. modern day love, but जितना आजकल हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, that's all via तुम्हारा साहिर फैज सराज. Yes. And परवीन शाकिर जी and बटालवी नहीं है. बटालवी तो सुनने वाले बहुत कम है. बटालवी हैज नॉट बीन एबल टू, मतलब नॉट बीन एबल टू भी क्या, बट बटालवी को इतनी ऑडियंस कभी मिली ही नहीं. Okay. So another thing about his life,
ऑडियंस मिलने के लिए सबसे पहले होता है टाइम. टाइम कभी था ही नहीं उनके पास. शराब पीने में जब तुम not criticizing him but yeah it's true 1936 he was born. 1972 he passed away. At the age of 36 only. 30 क्या At the age of 36 only. एक second, he was born in 36 हाँ. and he passed away in 72. हाँ ठीक है 1971 or 70 was the interview which was recorded in BBC. हाँ उसके बाद he moved passed. back to Pakistan. So you don't know about this? नहीं So when Batalia was married, हाँ. again prior to, I think he was on the cusp of the independence part. okay तो जब उनकी शादी हुई, जो उनकी वाइफ थी, वो she was from Pakistan से. अच्छा Born and brought up in Batala, Punjab. हाँ Then he moved to England. हाँ Then, when he knew he was dying, हाँ he moved back to Pakistan. wow A lot of people don't know about this, but he didn't die in India. Kirri Mangyal he was born in Badapend Pakistan Kirri Mangyal is actually the border of Indian Pakistan. धार कलन पठानकोट द मिनी गोवा ऑफ पंजाब वाओ जाना पड़ेगा एक सेकंड इंडिया ही पड़ता है भाई एमपी यहाँ का सनी देओल है बाय द वे Okay. But he moved to Pakistan for some time. सम टाइम आई बिलीव हाँ वो वापसी ले आए होंगे या आ गए होंगे ताकि थोड़ा वो एंड अपने देश या व्हाटएवर बट माइट हैव फेल्ट शुड आई ओवर है बट यहाँ Batalia was a different thing. वो इज अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर यार लोग नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ते हैं. That's their choice. Yeah, the most famous part of his कि पुछदे हो हाल फकीरा दा साडा नदियों विछड़े नहीं रहा. मैं अगर कोई ढंग से बैठे उसमें पीएचडी लिख सकता है. हाँ हाँ दैट होल कितना 13 मिनट का 14 मिनट का इंटरव्यू जो बीबीसी का आया हुआ है Oh, that is 3.5 आवर्स minute. नहीं द होल इंटरव्यू हाँ. So it's a 6-minute video. Out of that only I guess 6 मिनट ना हाँ. But out of those only 4.5 to 3.5 minutes something he was talking. That's it. हाँ तो कोई नहीं वो 6 मिनट जितने का भी वो इंटरव्यू है आई बिलीव वो दैट इज इनफ इफ यू कीप ऑन ट्रैकिंग जिस बटालवी हिज मूवमेंट्स इज एवरीथिंग वो उतना काफ़ी है वो शायर बदनाम. हाँ वो शायरा बदनाम. अमृता प्रीतम. व्हाट डू यू थिंक अबाउट अमृता एंड साहिर Pious. From Amrita's side at least. साहिर बदनाम Yes. I believe that. साहिर साहब ने लिखा भी तो था हाँ. कि महफिल से उठ जाने वालों तुम लोगों पे क्या इल्ज़ाम तुम आबाद घरों के वासी मैं आवारा और बदनाम खैर हाँ So again, I won't say कि again, I'll not target Sahir on this. कि उनका नेचर खराब है वो फलाने का लोग कहेंगे नहीं. Because I know a bit, I can't say the whole thing. हाँ. कि क्या वो फील कर रहे हो सकते हैं Yeah. उस टाइम पे. Maybe not about his mother thing. डेफिनेटली That's not a part. But other than that, yes. ठीक है. अमृता प्रीतम के हिसाब से तो it was purely biased. Same in अमृता इमरोज वाला वो स्कूटर वाला केस. ओए यार डूड Again, अमृता इमरोज was biased. मेरे साथ. हाँ मतलब वो था वो फैक्टर बट खैर जो भी जी उनके रिलेशनशिप के रहे फंडे So again, so idea of perception only some people will relate to Sahir. But if you talk about Amrita Sahir, I'll relate to Amrita. If you talk about Amrita Imroz, I'll relate to Imroz. If you're talking about Sahir and Amrita, I'll relate with Sahir. If you're talking about Amrita and Imroz, I'll still be relating to Sahir. रकीब ही बन के रह गए हो तुम. क्या करें अमृता जब वो इमरोज की पीठ पे वो एस लिखती है ना while they were on that scooter Yes. वो एस हूँ मैं इश्क का नाम है ये. हाँ
इश्क हो ना हो, इसका नाम है। हाँ, इसका एक और नाम फरीद। असलियत है। कहीं तो असलियत वही है, दुनिया वो समझ नहीं पा रही है। आई नो, बट कोई नहीं, ठीक है। आई थिंक विद ड्यू टाइम, इन ड्यू टाइम। With due time, I don't know what will come. In India, at least, I don't know. इंडिया में तो हाल खराब है भाई, पोइट्री के तो बहुत हाल खराब है। So basically, if I have a okay off topic, हाँ, if I have a Rekta Urdu learning guide in my home, you're not a Hindu. Hello. First of all, I'm not. ठीक है, मैं किसी रिलीजन को प्रैक्टिस करने में बिलीव नहीं करता हूँ। क्या कह रहे हो पंडित साहब? So there was a storytelling that I was doing. It was about infanticide, basically. ओके, थोड़ी टची थी, तो उसमें मैंने टारगेट किया कुछ पॉलिटिशियंस को, एंड दे वर लाइक नो यू आर एंटी बीजेपी। अरे यार तुम मेन स्टोरी पे जाओ ना, क्या सुना रहा हूँ मैं, तुम वो देखो। ओके, आफ्टर द एंड दे वर क्राइंग हाँ, बिकॉज ऑफ द स्टोरी, या, बट हाँ, यू आर टारगेटिंग बीजेपी। इतना तो देखा है मैंने, इतना मेरे साथ होते होते रह गया था। आई थिंक मेरी ऑडियंस अलग थी। सो वही, अभी अल्लामा इकबाल को हम पढ़ेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं तुम पाकिस्तानी हो। हाँ, हाँ, you read Allama Iqbal, you'll be like, oh fuck dude, into proper Islamist ho. And then when you get more into whatever he has said, you're like, भाई तुम इंसान ही नहीं हो। अल्लामा इकबाल wrote that ना, हिंदुस्तान वाला। हाँ हाँ, he wrote कौन सा यार वो? स्कूल में बहुत गाया करता हाँ हाँ, it was a patriotic song in school. था। अरे वो जो उसने भी राकेश शर्मा ने भी तो कही थी वो चीज़, सारे जहाँ से अच्छा सारे हिंदुस्तान। जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। Yes, yes. So सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा was actually written by one of those prominent leaders who asked for partition. So सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, basically somebody said that it was that ghazal, हाँ, okay, whatever that poem, that nazm, whatever it is, that is the sole reason Pakistan was born. wow. किसी ने ऐसा भी कह दिया, मैंने कहा क्यों? कहाँ लिखा है, क्यों लिखा है, तुम ये तो पढ़ लो। रिलीजन और पॉलिटिक्स से वापस आ जाते हैं। हाँ, वरना थोड़ी देर में हम ही कैंसिल होते देखेंगे। हाँ, नहीं कैंसिल होने वाली बात नहीं है भाई, कैंसिल होने से डर नहीं लगता, फिटनेस से लगता है। पिटने से लगता है। भैया गोरक्षक। भैया भैया दो कॉफ़ी करवा दो। हाँ, एक बिना चीनी और एक चीनी। अल्लामा इकबाल की जो ये है क्या कहते हैं पोर्ट्रेट है, वो शेक्सपियर के घर में लगी हुई है। शेक्सपियर, I have no idea about this, but सो आई थिंक शेक्सपियर ही है उसकी जो, नहीं नॉट शेक्सपियर, सम राइटर, उसकी पूरी की पूरी जो गली थी ना, दे हैव कमेमोरेटेड द होल स्ट्रीट टू हिम, okay. एंड इन ऑल ऑफ दोज हाउसेस, लाइक किसी एक घर में जो कमेमोरेट, लाइक पूरा म्यूजियम बनाया हुआ है। On Allama Iqbal. नहीं, ऑन दैट पर्सन, ऑन दैट राइटर, Okay. एंड उसमें से दे हैव कमेमोरेटेड दिस गाय एज वेल, अल्लामा इकबाल। क्या हो गया? उसको काम है, कुर्सी को काम है। ठीक है। Next time बदलाव क्या होगा? Oh, this is more comfortable actually. नाइस। Tell me. तो ये सीन है। इकबाल साहब ने मतलब वो हिंदुस्तानियों से अलग गाली खाते हैं, अब वो से भी खाते हैं। पहले पाकिस्तान में पूरी खाई है, शिकवा जवाब शिकवा के ऊपर, एंड ऑल्सो हिज एक्टिविटीज। मैंने ना उसमें एक लाइन लिखी हुई थी अपने शो में कि फैज साहब को, कि फैज साहब ने गुलों में रंग भरे जब लिखी, तो ही रोट इट एज यू नो लाइक कि हाँ जब दिन ठीक होंगे सॉरी, तब हम अपने लाइक विल बी सेलिंग यू नो
He'll be selling flowers. Okay. बहुत वो होता है ये, मतलब it's a very peaceful profession of selling flowers. तो बट फैज साहब तो सरकार गिराने के आरोप में जेल में थे. ठीक है. तो ये था कि क्या फैज साहब को इतना डर लगता था टैक्स भरने से कि उन्होंने सरकार ही गिराने की बात कर दी. फूल वैसे पे इतना टैक्स नहीं है, चलो गाइस पहले बता दे. बट मतलब आई वाज लाइक वेट व्हाट, द होल थॉट लाइक वो पूरी थॉट वो ऐसे हो गई थी मेरी. दैट होल थॉट वाज लाइक डैम डूड, क्या सोच क्या रहा है तू फिर ही. लाइक फैज साहब को डर लग रहा था टैक्स भरने से, तो इसलिए उन्होंने कू रख दिया एक. एंड आफ्टर दैट ही इज लाइक बोलो में रंग भरे बाद ना बाहर चले. डूड तुमने सरकार गिराने की कोशिश करी है. नेक्स्ट लेवल स्टफ. बट या लवली गाय. लवली नहीं, अहमद फराज वाज लवली. अहमद फराज साहब का तो भैया कोई वो रीस ही नहीं है. उनकी तो कोई रीस नहीं है. फराज साहब के बारे में तो तुम जितना कहो पूछो करो. Okay, not too controversial, but yeah. फराज साहब Never. He was never too never too controversial. controversial. His writings and everything are also not that controversial. Even the stuff that he wrote during partition, of course, controversial, but ठीक है. यार controversial तब होगा जब उसको गलत लोग पढ़ेंगे. सच बता रहा हूँ, उसकी ब्यूटी को देखो. हाँ. As per our knowledge, Yeah. it wasn't like he isn't controversial. So, controversial poets को तो इंडिया में भी जेल हो गई थी यार. नावर फारूकी पोएट कब से बन गया? क्या था वो? मुनावर फारूकी wrote that thing ना भी, काफी अच्छा चला था यार उसका वो. मैं खाली किताब लेके आऊंगा, अपने ख्वाब ले आना. नावर फारूकी यार वो वही ना ये. So guys, just to confuse, मुनावर राणा is different, मुनावर फारूकी is different. मुनावर फारूकी हाँ, बिग बॉस इससे पहले बिग बॉस वाला है. मुनावर राणा यार बाबा नागार्जुन I was talking about. ओ या Great friend of जवाहरलाल नेहरू, great friend of हरिवंश राय बच्चन. हाँ उनके घर पे होते थे. हाँ तो there was thing जब उनको इमरजेंसी के टाइम पे अरेस्ट कर लिया था. So he wrote something about इंदिरा गांधी. You know about that? tell me. कि इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता में आते ही भूल गई बाप को. So that balls to write at that time. एक और था इसका कि इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को. वाह वाह. आपकी चाल डाल देख लोग है दंग, हुकूमती नशे की वाह वाह कैसा चढ़ा रंग. वाह. So you needed balls to write these kind of. This is what I say, it's controversial. जो पावर मैं उस टाइम लिख के देखा उस पर. यार उस टाइम पे तो सोशल मीडिया भी नहीं था, पता ही नहीं चलता था कि हाँ भैया कोई बंदा मर गया है, कुछ हो गया है, प्रोटेस्ट कौन करेगा फॉर लाइक्स. आजकल की प्रोटेस्ट डन, डबल टैप एंड डन. And these guys were actual stalwarts and legends, man. तुम चाहे कुछ भी कर लो. नागार्जुन, हरिवंश राय बच्चन didn't write anything on. He was never too controversial. हाँ, he was never too controversial. Played it safe. But ठीक है वो तो यार. फैमिली ट्रेट है ना मेरा. To play it safe. He had to, I believe. I think it's because of him only that his son was portrayed as the face of Bollywood. Oh yeah. There was a lot of. But that was only like one of his sons. नहीं पता उसमें को बता. हाँ हाँ. The second son खैर उसकी किस्मत भी थोड़ी खराब कहते हैं. अजिताभ, right? उनकी किस्मत भी थोड़ी खराब कहते हैं. हाँ, कहाँ थे अल्लामा इकबाल. डॉक्टर साहब. So recently there were so many changes in my life. Yeah. You know that.
जॉब से ये वो फलाने का then some family things ये वो so I got the new job ये मैंने एक ऐसे बंदे को बताया जिसको हिंदी ढंग से नहीं आती है ठीक है पहली बार so she like I told my boss that I write so she asked me to say something what I like feeling उस टाइम मेरे दिमाग में सिर्फ अल्लामा इकबाल का एक शेर है and the most famous one खुद ही को कर बुलंद इतना then okay I don't live by खुली कर बुलंद इतना मैं ठीक हो जैसा हूँ मैं बुलंद हो जाऊँगा ठीक है उड़ना सीख रहा हूँ बहादुर भी बन के दिखाऊंगा I live my life according to his wishes सितारों से आगे जहाँ और भी हैं अभी Same इश्क गज़ल. के इम्तिहान सेम गजल बट यार got it. So मेरी मम्मी बताती होती हैं ओके कि मेरे नाना जी जो थे never met my नाना जी but everybody says that I look very much like him मतलब चलने का तरीका बॉडी स्टाइल स्ट्रक्चर सब कुछ इस तरीके से so they're like कि he used to keep on reciting खुद ही को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले he used to keep on reciting it like दिन में 5-6 बार तो वो बोल देते होते थे oh okay that's new I know even I had no idea यार वो उस टाइम पे I'm talking about when the 40s 50s and 60s उस टाइम पे he was an auditor in the BSO okay ज़्यादा ऊपर मतलब he was not in action he was not directly in action but हाँ so I'm sure he had that revolutionary and that communist mindset communism मेरा तो है oh. मेरा तो है communist and anarchist दोनों different things I know वैसे आज के डेट में communism के 14 मेरा ये फंडा यार see communism is very beautiful on paper but practical नहीं है when it comes to real life applications not there हाँ it is not there same with socialism paper पे ठीक है you have to modify communism and socialism both of them so that they can be implemented middle class we are all trapped in capitalism because, and will always be yeah जब तक ये कैमरास माइक्स लैपटॉप्स फोन्स सब कुछ है ना हमारे पास तब तक कैपिटलिज्म में तब फंसे रहें कैपिटलिज्म में हम लोग फंसे रहेंगे भाई देयर इज दिस थिंग देयर इज दिस ट्रेंड इफ योर monthly earning is less than $1,000 okay you'll be buying more of water, basic food, stuff like that. तुम्हारी सैलरी जब $2,000 तक पहुंचती है you start indulging yourself in coffee true ठीक है क्योंकि तुमको काम ज़्यादा करना है you start indulging in the gym because you have to stay fit so that you can work okay and once it crosses 2000 you start indulging in energy drinks wine ठीक है ऐसे ये पूरे प्रॉपर दिस इज एन इकोनॉमिक वो ट्रेंड apparently okay मैं प्रॉपर एक ग्राफ ढूंढता हूँ वो है कहीं ना कहीं पे बनने के मेरे जैसे होते जो हम $500 की जब हमारी सैलरी थी तब से हम कॉफी पे ही बनते हुए आ रहे हैं भाई फिर वो भी तो है ना मैं बोलना ही चाहता खानदानी हो गए मैं कैमरे पे नहीं बोलने वाला बाद में तुझे बताऊंगा वेट लेट मी मैसेज इट टू यू आई वांट टू सी योर रिएक्शन टू इट बिफोर दैट फोन खुला क्या सुन पड़ा है क्या सर जस्ट चेकिंग समथिंग ऑन अल्लामा इकबाल ऊपर एक चीज आई हाँ एक सेकंड रुकियो भेज रहा हूँ तेरे को आने दो yeah है ना I feel that you feel that Yeah. right हाँ बस ठीक है हाँ
I just don't want to say it on camera. Yeah. हाँ ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है. हाँ फिर अच्छा हाँ बताओ. Again, this thing was written in 1905. अच्छा. मजनू ने शहर छोड़ा तो सहरा भी छोड़ दे, नज़ारे की हवस हो तो लैला भी छोड़ दे. हाँ. But I think it has twisted it way around right now. Yeah. It has. It has. What do you use on the modern day? Okay, I'll give you the word. You tell me what do you use on that word. ठीक है. Situationship. Because I have written something on that, I'll recite after that. We people love to put everything into boxes. ठीक है. The fact is कि अब हमने जो एक चीज़ होती है ना रिश्ता Okay. इन बिटवीन नाशिक एंड माशूक, हमने उसको भी लेके इतना वो कर दिया ना, व्हाट डू यू कॉल इट, compartmentalize that we've come up with the term situationship. And the fact is that people do drift towards it without their own need and want. Even if they feel like कि हाँ यार we don't need it, we don't want it, but नहीं, people do end up drifting into one. Okay. But still, doesn't define the word. हाँ, it does not. मैं अगर कुछ भी कह लूँ, I cannot define the word यार. लिखा क्या है? ये तो मैंने सजेशन से बाहर आने के लिए लिखा. अच्छा. तो ये again, it's not like I've used it on every person from the other gender I've met, हाँ. but I've used it. ठीक है. सच बोलना है, वैसे अपने हरामी हम भी हैं. ठीक है. हाँ, एटलास हैं तो मर जाती. तो एक कविता लिखी थी कि अब ये इसका बैकग्राउंड ऐसे देता हूँ कि किसी दिन अगर आपसे भी पूछ पाए दैट सिचुएशनशिप लेवल हर 2 महीने में हर रिलेशनशिप में ख्याल आता है. आई एम नॉट सेइंग आफ्टर मैरिज. वेयर आर वी, हु आर वी एंड व्हाट आर वी. ठीक है, आपके साथ भी वो होगा हमेशा. ठीक है. पहले सिगरेट पकड़ा दे. तो इसके लिए मैंने बाहर निकलने के लिए रास्ता अपनाया. तो एक दिन मुझसे पूछ पड़ी, put in a very beautiful. Okay, before that इसमें एक वर्ड आएगा पपीहा. So according to हिंदी लिटरेचर, पपीहा एक बर्ड है जो सिर्फ और सिर्फ बारिश का पानी पिएगा. ओके. ठीक है. ठीक है. प्यासा रह जाएगा, फ्रेश वॉट लेक या कुछ भी नहीं. हाँ. सिर्फ बारिश का पानी पिएगा. ठीक है. प्यासा रह के मर जाएगा बेशक. ठीक है. बिफोर दैट उसका रेफरेंस बताने के लिए एक दिन मुझसे पूछ पड़ी क्या रिश्ता है हम दोनों का. वाह. अब तक सोच रहा हूँ मैं क्या उत्तर दूँ इन प्रश्नों का. क्या गंगा ने पूछा है क्या रिश्ता श्वेत हिमालय से. क्या साकी ने जाना है क्या रिश्ता है मदरालय से. वाह. क्या मोती ने जाना क्यों सीपी उसे छुपाता है. क्या चकोर को ज्ञात हुआ क्यों चंदा इतना भाता है. वाह. वाह. क्या रिश्ता है टूटे दिल आंखों से बहते पानी का. क्या रिश्ता है इस जीवन में बचपन की नादानी का. तो अगले थी कि क्यों धरती और व्योम. व्योम मतलब गाइस होराइजन. कई लोगों व्योम का मतलब भी नहीं पता होता. तो क्यों धरती और व्योम साथ में दूर कहीं पर मिलते हैं. क्यों बादल को देख पपीहा के मन जाते हैं. तो एक लाइन इसमें बड़ी ये समझ आए तो कि क्षमा और परवाने का रिश्ता जग में क्या कहलाता. क्षमा और परवाने का रिश्ता जग में क्या कहलाता. निस्वार्थ भाव निष्प्रेम प्राप्ति को जीवन अर्पण करता. वाह. बहुत प्यारा. तो जिस दिन इन रिश्तों की मिल जाएगी मुझको परिभाषा, उस क्षण मैं पूरी कर दूंगा तेरे मन की हर एक जिज्ञासा. बस उस दिन कह दूंगा ये कि ये रिश्ता है हम दोनों का. हाँ, कुछ ऐसा रिश्ता है हम दोनों का. बस ये रिश्ता है. बहुत प्यारा. सो इट एक्सप्लेन सिचुएशनशिप हाँ. अ बिट. मेरी साइड से तो अभी भी क्लियर नहीं कर रहा हूँ मैं. तो या that's how you deal with it. That's how you need to come out of it. If you want, I'll copy paste it to you. Send it to you. Send it to me. Yeah. But इसको खत्म करें अभी यहीं पे. हाँ. Random conversations, trying to be Fareed with
Next time I'll set up on my system and it's Naman Kaushik अभी. तकल्लुफ़ अभी आएगा, थोड़ा टाइम वेट कीजिए. But yes, this is my very dear friend Naman and बस बैठे पिछली बार भी जब यहाँ बैठे थे हमने सोचा था कि यहाँ कुछ रिकॉर्ड करेंगे. इस बार आज वो कर पिछली बार हम लोग स्टार्ट हुए थे जॉन से. हाँ. Then we went to Sahir. हाँ. Then we went to बनाना भी आए थे. No. मजाज. हाँ, yes, you Then we went to मजाज. मजाज साहब. लंबी बैठक बिठाएंगे. बट यार किसी और दिन. तब तक के लिए, हमेशा के लिए, तुम्हारा हमेशा.